اس میں مختلف طرح کے جذبات اور احساسات پنپتے ہیں، یعنی یہ منبع اور مصدر ہے مختلف طرح کے جذبات اور احساسات کا۔ اگر یہ مثبت ہوں یعنی پازیٹیو ہوں تو انسان کی پوری شخصیت سنور جاتی ہے، وہ نیکی کا پیکر بن جاتا ہے، خیر کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ جذبات منفی ہوں، نیگیٹو ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، وہ بدی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے صفاتی نام ہیں یا ایسی صفات ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جن کا کچھ عنصر اللہ نے اپنے بندوں میں بھی رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے کامل اسوہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک چڑیا بے قرار ہو کر کبھی آپ کے دائیں جانب اڑ رہی ہے، کبھی بائیں جانب اڑ رہی ہے، کبھی سر پر سے وہ پرواز بھر رہی ہے جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہ کچھ معاملہ ہے، پوچھا کہ یہ چڑیا بے قرار کیوں ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے گھونسلے سے اس کے دو انڈے اٹھا لیے۔ تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، جاؤ اور فوری طور پر جو ہے وہ اس کے جو انڈے ہیں واپس اس کے گھونسلے میں لوٹاؤ، یہ ماں دیکھو کتنا بے قرار ہو رہی ہے۔ تو جب تک انہوں نے یہ کام کر نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو انسان، آپ جانوروں کے لیے، مخلوقات کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو کائنڈنس، مہربانی، نرم دلی، نرم رویہ، دوسروں کے لیے شفقت اور محبت، یہ وہ جذبہ ہے جس میں انسان کو کچھ دینا نہیں پڑتا لیکن یہ لوٹاتا بہت کچھ ہے۔ اب ہم حکیم صاحب سے جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر یہ جذبات ہوتے ہیں تو کس طرح وہ دوسروں کے لیے محبوب بن جاتا ہے۔ مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ۔ یہ مہربانیاں بڑی کام آئیں گی عاقبت میں۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد عنایت حکیم صاحب۔ ہر کسی نے مجھے مجذوب سمجھ رکھا ہے، ہر کسی نے مجھے مجذوب سمجھ رکھا ہے، مجھے مجذوب سمجھ رکھا ہے، صرف تو نے مجھے محبوب سمجھ رکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ صرف تو نے مجھے محبوب سمجھ رکھا ہے، ہر کسی نے مجھے مجذوب سمجھ رکھا ہے۔ ایک مدت ہوئی روتے ہوئے ان آنکھوں کو، ایک مدت ہوئی روتے ہوئے ان آنکھوں کو، تیرے غم نے مجھے یعقوب سمجھ رکھا ہے۔ واہ، تیرے غم نے مجھے یعقوب سمجھ رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور امتحان صبر کا اب اور نہ لے تو میرا، امتحان صبر کا اب اور نہ لے تو میرا، تو نے شاید مجھے ایوب سمجھ رکھا ایوب ہے۔ سمجھ، واہ واہ حکیم صاحب واہ۔ تو نے شاید مجھے ایوب سمجھ رکھا ہے۔ اور در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری، در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری، آپ لوگوں نے تو معیوب سمجھ رکھا واہ ہے، واہ واہ۔ آپ لوگوں نے تو معیوب سمجھ رکھا ہے۔ در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری، آپ لوگوں نے تو معیوب سمجھ رکھا ہے۔ بہت اور اپنی حالت کی خبر اب نہیں ہوتی مجھ کو، اپنی حالت کی خبر اب نہیں ہوتی مجھ کو، تو لوگوں نے بھی معتوب سمجھ رکھا ہے، تو لوگوں نے بھی معتوب سمجھ رکھا ہے۔ ہر کسی نے مجھے مجذوب سمجھ رکھا ہے، صرف تو نے مجھے محبوب سمجھ رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ حکیم صاحب، یہ تو ترمیحات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہر شعر کو آپ ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ منفرد ہو جاتا ہے دوسرے باقی تمام اشعار سے، اور پوری جو غزل ہے وہ سراپا سماعت ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کسی دوسرے جہان میں لے جاتی ہے۔ پورے واقعات کو جب ہم اپنی تصور میں لاتے ہیں تو ایک عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ واپس اپنے آپ کو کیسے اس پروگرام کی نوعیت کی طرف لے کر آئے۔ سدھا جی ہمارے اس پروگرام کی پہلی کالر ہیں اور بہت کچھ سدھا جی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سے مخاطب ہے سدھا جی، فرمائیے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹی، جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے۔ ہمیں تو ان کے بارے میں الفاظ ہی نہیں ہوتے، ہم کیا کہیں ان کی تعریف میں۔ تعریف کرنا تو صرف آپ ہی کو آتا ہے، ہمیں نہیں آتا اس کا۔ میں بھی قاصر ہوں، حق ادا نہیں ہوتا سدھا جی، حق بالکل ادا نہیں ہوتا۔ جی فرمائیے۔ میری پیاری بیٹی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میری مسیحا آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دبرا کھاتے ہوئے لگتے رہتے ہیں. واہ واہ بس شاعری آپ کی. ہمارے پاس واقعی میں الفاظ نہیں ہے بیٹی. ہمیں بھی سکھا دو یہ سب تعریف کرنا. آپ اسی طرح سے روز غزل پڑھتے رہے, ہم سنتے رہے. آپ ہماری شہنشاہی جذبات ہیں. پتہ ہے شو میں نہیں آئے تھے تو ایسا لگتا تھا مانو زندگی ٹھہر گئی ہے. یہ زندگی صرف آپ کی نہیں ہے, محل ہم سب کالرز کی بھی ہے. ہمارا بھی حق ہے اس پر. آپ کی باتوں میں وہ مٹھاس ہوتی ہے. آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اور آدھی بیماری آپ کے نسخوں سے. نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں چولہا چلتا ہے. چھوٹے چھوٹے نسخے ہم سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کروڑوں لوگوں کے دل میں بات کرتے ہیں, ان کی دعاؤں میں رہتے ہیں. کیوں نہ ہو اب بات اچھے انسان ہے. سب کی تکلیف دیکھو بھی سمجھتے ہیں, سب کا علاج بھی بڑھاتے ہیں اور ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں. عرض کرتی ہوں آنکھوں میں ہو تو سب دل میں ہو یاد تیری. تیری یاد کی مہک سے مہک جائے دنیا میری. واہ. کل آپ نے جو اپنے بارے میں بتایا, آپ تو ڈاکٹر کو مات دے آئے. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کریں. خدا سے درخواست کرتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہ ہو, ہمیشہ سوستھ رہیں اور سب کی ضرورتیں پوری کریں. جب سے میں آپ سے جڑی ہوں ہر روز سے دل مرتی ہوں. میرے کارن میں نے اپنے پیارے جیجا کو کھویا ہے. ان کو ہارٹ کی بلاکیج تھی, آپریشن کے لیے مان نہیں رہتے. سب نے مجھ سے ضد کری تھی آپ انہیں مناؤ تو مان جائیں گے. میں نے انہیں زبردستی منایا. ڈاکٹروں نے اس طرح ان کا برا حال کیا, 70 لاکھ کا بل بنا دیا اور پھر ہم انہیں بچا بھی نہیں سکے. جب تک جیوں یہ غم میرے ساتھ جائے گا. کاش آپ مجھے پہلے ملے ہوتے تو وہ اللہ کو پیارے نہیں ہوتے. میں ان کا آپریشن نہیں کراتی. جتنے بڑے ڈاکٹر اتنے کسائی ہیں, صرف نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. دلی کے پولیس تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. میرے جیون کا ایک ہی لکشیہ ہے, شاید میں کسی کے کام آ سکوں, کچھ میرا درد کم ہوگا. جس کسی کے بارے میں سنتی آپریشن کے لیے منع کر دیتی ہوں. ہر کسی سے یہی کہنا چاہوں گی پلیز آپ ایک بار ہمارے حکیم صاحب جی سے ملیے, ان کے نسخے آزمائیے, آپ اویشیہ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے تو پورا وشواس ہے, آپ بھی ایک بار وشواس کر کے دیکھیے. جی سر, میرا ایک سوال ہے. جی. میری ریلیشن میں ایک لیڈی ہے, 68 سال ان کی عمر ہے. بی پی, شوگر, تھائرائڈ سب بیماری ہے. بازو کی ہڈی گل گئی تھی, ابھی آپریشن کروایا ہے. پلیٹ ڈلی ہے, پیٹ میں درد رہتا ہے, کمر میں بھی بتا رہے تھے درد ہے ان کے. پیٹ کا ٹیسٹ کروایا, لیور کے پاس کینسر بتایا ہے. بھوک کم لگتی ہے, 20 کلو وزن کم ہو گیا ہے. انہیں کیا دوں؟ 4th اسٹیج کا کینسر ہے. اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے پلیز مجھے کھل کے بتائیے تاکہ میں ان کے بارے میں کچھ بتا سکوں. ٹیسٹ کی بھی بتا رہے تھے کی ہے, بائپسی کری, بازو کی بائپسی کری تو بازو میں بھی کینسر کہہ رہے ہیں. پیٹ سے بازو میں کینسر چلا گیا. میرے خیال ایسا تو نہیں ہوتا, باقی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بتائیں گے. بالکل سدھا جی, ہم چاہیں گے کہ کیا فوری ہے طور یہ پر, سب کچھ؟ جی فوری طور پر آپ کے سوال کے لیے ہم حکیم صاحب سے رہنمائی لے لیں. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے, پوری رپورٹ شیئر کریں تو بہت اچھا ہے. اور لیور کے لیے ہم دیتے ہیں نمک زیتون, اور اس کے ساتھ ایک چٹکی نمک زیتون, 1 گلاس پانی اور ایک چٹکی گون چلوزا دن میں 2 بار دیا کریں انہیں, اور ڈاکٹرز کی دوائیں بھی لیتے رہیں. دراصل ڈاکٹر سب برے نہیں ہیں, لیکن اکثریت بری ہے. جب جس قوم کے زیادہ لوگ خراب ہو جاتے ہیں وہ پوری قوم خراب کہلاتی ہے. حالانکہ جس دن اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اس دن یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ پیشہ جو سیوا کا ہے اور علاج کا ہے اور ہمدردی کا ہے, اس میں بیشتر لوگ, زیادہ تر لوگ طالب دنیا کی طلب رکھنے والے آ گئے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے عاقبت کی طلب رکھنے والے
भगवान से डरने वाले लोग आते थे और वो अपने पास से कुछ खर्च कर देते थे और गैर जरूरी टेस्ट कराना, गैर जरूरी ऑपरेशन करना, अगर हमने कुछ भी गैर जरूरी, अगर टेस्ट है तो कराओ, जरूरी है तो जरूर कराओ, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज का गैर जरूरी कोई टेस्ट कराया, गैर जरूरी ऑपरेशन किया अपने फायदे के लिए, तो याद रखें कि एक दिन भगवान को जवाब देना होगा। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही, इसको चलाने वाला है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, सब अपनी अपनी जबानों में उसे पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही है। तो अगर किसी को डर नहीं है भगवान का, तो वो चाहे जो करे, लेकिन उसकी सजा उसे मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सारा इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं, सारा इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। वाह वाह, बेशक बेशक हकीम साहब। अगली कॉलर को शामिल करें। नसरीन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नसरीन। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे 3 सवाल आते हैं। हमारी बेटी को 1 साल का बच्चा है, उसको अब 1 साल के बाद अब माहवारी आया है, तो उसको माहवारी आने की वजह से मुंह सूज गए, आंख भी सूज गई, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही, पीठ में कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरा सवाल, 10 साल की बच्ची है, उन्हें हाथों के नाखून ना खाती होती, स्कूल को जाती हाथों के नाखून खाती। तीसरा सवाल, 7 साल का बच्चा है, उन्हें अभी बात नहीं करता, उसके लिए क्या करना बताइए हकीम साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब। कमर में दर्द और स्वेलिंग है मुंह पर या पूरे जिस्म पर भी, तो एक नुस्खा बना लें और ये उनके इमराज में फायदा कर सकता है। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, और पानी में मिलाकर या ऐसे ही खा लें 1 चुटकी नमक और उस पर पानी पी लें, दोनों तरीके एक ही हैं। तो इससे उनकी स्वेलिंग अच्छी होना मुमकिन है, और जो पीरियड्स में बेएतदाली है वो भी अच्छी होना मुमकिन है। बहुत सी ख़वातीन माएँ ऐसी हैं जिनको बच्चे को दूध पिलाने के दौरान हैज नहीं होता, तो ये फिक्र की बात नहीं है, फिर लेट हुआ है तो कोई बात नहीं, तो ये नुस्खा आप उन्हें दे सकते हैं। और भी कारगर करना हो तो अलसी को हल्का सा भून कर और उस एक चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी का पाउडर खिलाएं और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर खिलाएं, तो उनकी परेशानी अच्छी हो सकती है। बहुत दर्द है तो गौन स्याह आधा ग्राम, गौन स्याह आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद उनको खिलाएं, तो उनके तमाम दर्द में फायदा हो सकता है। बच्चा जो नहीं बोलता है उसके लिए रोगन बादाम दूध में मिलाकर 2 चम्मच या 1 चम्मच रोजाना 1 बार उन्हें पिलाया करें। और मेथी का पाउडर बना लें, मेथी का पाउडर 7 साल का बच्चा है तो 1 ग्राम मेथी का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून शहद में मिलाकर उसे रोजाना चटा दिया करिए, 1 बार या 2 बार, आपके बच्चे को भी फायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? एक सवाल है जो हम देखते हैं अक्सर कुछ बच्चे होते हैं वो अपने नाखून जो है वो चबाते हैं
दांतों से, ये आदत कैसे छुड़ाई जाए किम साहब? बहुत से लोग कहते हैं कि ये बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी की भी अलामत होती है, कोई खौफ है या एतमाद की कमी है तो वो बच्चे अपने नाखून दांतों से चबाते हैं, हाथ बदनुमा हो जाते हैं और ये आदत भी खराब है, छुड़ाएं कैसे इसे? हाँ, डराना पड़ेगा उसको, कोई ऐसी वीडियो या बात बताइए जिससे वो ये समझ ले कि हमारे नाखूनों में कीटाणु यानी जरासीम होते हैं, इससे हम बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। तो उन्हें डराइए और तरह तरह से डराइए और प्यार से डराइए, गुस्से से नहीं। तो मुझे उम्मीद है वो बच्चा ये बात कबूल करेगा और बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं। 2 कॉलर्स और हैं। शाहीना पहले आपसे मुखातिब है, सलाउद्दीन भाई थोड़ा सा इंतजार। जी शाहीना साहब बताइए। शाहीना साहब हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। सलाउद्दीन भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको भी और जनाब हमारे हकीम साहब को भी बहुत बहुत दिन के बाद जो है दिल को सुकून मिला कि आप लोग आ गए, तसल्ली हो गई। लेकिन आज आपने जो अशार सुनाए बड़े गजब के सुनाए साहब। एक शेर याद आ गया मुझे, आप कहो तो सुना दूं? इरशाद इरशाद। तो वो है कि शायर का भूल से गया मैं, लेकिन वो इतना याद है कि तन पे पेरहन तार तार, उस पर नजरे सारे जमाने की, इलाही हद होती है किसी को आजमाने की। और सवाल ये थे कि एक तो हजरत आपसे मैंने साबिर भाई नागौरी के लिए पूछा था, उनको पेशाब की ज्यादती थी और जरियान की शिकायत थी, गोंद चिलगोजा और एलसी आपने बताई थी, और कम से कम उनको महीना भर हो गया। एक टे वो लेते हैं पर वो फायदा भी उनको कुछ बराबर हुआ नहीं। और कुछ हैदर भाई और वो जो रुकू में जिनकी हालत थी, अकबर अली साहब को वो गोंद से खा रहे हैं लेकिन अभी बराबर उनको तसल्ली नहीं हुई। और 2 सवाल कुछ ऐसे हैं कि जो अभी अभी गिर गई हैं। एक हमारी मुमानी जान है जिनके सर में कुछ खून जम गया तो पालिश का आर्जा हल्का सा दिमाग पर हो गया। और एक जो है उन्हेल में है, उनके वो जो है सलीम भाई, उनकी उम्र 70 साल है और मुमानी की उम्र कम से कम 80 के करीब है। तो इन दोनों के खून जो है दिमाग में सर पे जम गया है, तो डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन करना होगा। जो मर्द है उनको जो है हाथों में धुलने लग गए, खाने की नहीं बनती है, चलते हैं तो गिर जाते हैं, उनके लिए कुछ नुस्खा बता दीजिए, मैं रिकॉर्ड करता हूँ अब आपका। बेहतर जी हकीम साहब। जिनके दिमाग में खून जम गया है उनकी उम्र काफी है और मेरे ख्याल से ऑपरेशन मुनासिब नहीं होगा इस उम्र में, और दिमाग के ऑपरेशन 99% नाकाम हो जाते हैं। फिर भी आपके इख्तियार में है। 1 ग्राम हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून, उन्हें रोजाना 1 मरतबा पिलाया करें, इंशाअल्लाह उनको फायदा मुमकिन है। जिन लोगों को फायदा कम है, इत्मीनान बख्श फायदा नहीं है, तो अगर वो गोंद से 2 बार खा रहे हैं तो 3 बार देना शुरू करें, आधा ग्राम दें। अगर उसकी मकदार कम खा रहे हैं तो तय कर लें कि आधा ग्राम कितना होता है। 2 बार में फायदा नहीं हो रहा, 3 बार भी लिया जा सकता है। 5 घंटे के फर्क से 3 बार भी ले सकते हैं। और वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह का एहतमाम जरूरी है। जिन लोगों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता उनको देर से फायदा होता है। और जिनको पेशाब की दिक्कत है और वो भी अगर मुतमईन नहीं है, तो अगर 1 बार खुराक खा रहे हैं वो, तो 2 बार कर दें, बस इंशाल्लाह उनको फायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। उज़मा बताइए क्या सवाल है? उज़मा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, हमें इससे पहले भी आपको एक बार कॉल किए रहे थे, हमारा वजन काफी बढ़ा हुआ है। आपने जीरा अदरक बोले थे, हमने वो लिए लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा।
पैदल चलने के लिए अगर हम 5 मिनट भी चले। उस्मा साहिबा, टीवी का वॉल्यूम ज़रा म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए जब तक सवाल बयान कर रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है पूरी तरह वजाहत के साथ पहुंच नहीं पा रही है। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपना सवाल जो है वो इब्तदा से बयान कीजिए, शुरू से। बढ़ा हुआ वजन है और क़ज़ीरा की जो है वो हिदायत की थी, फिर क्या हुआ? डॉक्टर हमने ना ज़ीरा अरक हमदर्द का हमारे इधर मिलता, हमने वो लिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ हमको इससे। ठीक है। सांस भी बहुत ज्यादा फूलती है, चलना ही नहीं आता हमको बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी चले तो बहुत सांस फूलती है। ठीक है, खदीजा साहबा का सवाल भी ले लेते हैं। जी बताइए खदीजा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि हकीम साहब जो कई बीमारियों के लिए लाजवंती के बीज बताते हैं, तो हमारी खाला के लिए भी उन्होंने लाजवंती, अलसी और नमक जैतून का नुस्खा बताया था। तो हम लोगों ने कभी लाजवंती के बीज तो देखे नहीं थे, तो पहले उसको गूगल पर सर्च करके फोटो देखा, फिर अफ्तार के हाथ से ये बीज मंगवाए। तो बीज तो वैसे ही थे दिखने में जैसे गूगल पर देखे थे, तो हम लोगों ने करीब 10-15 बीज लेकर उसको गमले में बो दिया ताकि लाजवंती का पौधा भी हो जाएगा, और बाकी उसको दवा में इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो पौधे बड़े हुए और उनमें भी आने लगे तो ये लाजवंती के पौधे नहीं थे, ना ही वो पत्तियां वैसी थी जैसी होती है लाजवंती की, और ना सूखने पर सिकुड़ती है, ना फूल वैसे, और वैसे तो एक बारिश का ही पौधा है। तो अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि हम तो सारी चीजें पहचानते नहीं है, अफ्तार ने जो दे दिया वो हम मान जाते हैं, और अब ये गूगल से भी मैच होती हुई ये नकली चीजें हैं, उतना फायदा कैसे दे पाएंगी? जी हाँ बेटा, शिनाख्त तो करनी पड़ेगी। और लाजवंती के बीज अगर पानी में मिलाए जाए या दूध में, तो ये बिल्कुल रबड़ जैसे हो जाते हैं, ऐसा खींचने लगते हैं, और अपने फवायद के लिए ये बहुत कामयाब हैं। और किसी जानकार के हवाले से आप उन्हें ख़रीदें, और बहुत अच्छा किया कि आपने उनको वो भी दिए। बहरहाल मेरे YouTube चैनल है हकीम सुलेमान खान, उस पर आप सर्च करें, आपको तफसील बयान की जाती है। और रोज़ाना 2-4 नुस्खे जात जो हमारी और आपकी बात हो रही है, ये भी हम उस पर पेश कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। आप दोबारा ये नुस्खा सुनना चाहें तो ये लोग डालते हैं राह निजात नाम से इस प्रोग्राम को, आप कोई भी नुस्खा कभी का भी सर्च कर सकते हैं। और मेरा YouTube चैनल हकीम सुलेमान खान को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी तरफ से हमेशा 2-4 नुस्खे जात रोज़ाना आपको मिलते रहेंगे। जी, उस्मा के सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। बकिया नाजरीन से भी हमारी यही गुजारिश है कि जिस दौरान आप अपना सवाल पेश करते हैं उस वक्त बराह करम टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए आहिस्ता कर दें या म्यूट कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो पूरी तरह से हकीम साहब की समातों में उतर जाए। आपका मामला जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी आपकी रहनुमाई मुमकिन है। तो सवालात का खैर मकदम रहेगा। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि दर्दमंदी का जो जज्बा है ये बड़ा खूबसूरत है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनके कुछ तकाज़े होते हैं, उसमें भी गर्मी अगर है तो हम ये देखते हैं कि परिंदे जो हैं वो बेकरार होते हैं, प्यास की शिद्दत होती है, गर्मी की तपिश से बेचैन होते हैं। ऐसे में उनको साया फराहम कर देना, उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह सर्दी का जो मौसम है ये भी बहुत सारी शिद्दतें लेकर आता है उन तमाम लोगों के लिए जिनके सर पे साइबान नहीं है, जिनके सर पे कोई छत नहीं है, खुली छत के नीचे, खुली आसमान के नीचे वो रात गुजारते हैं। परिंदे हैं तो वो दरख्तों में जो है वो सुकड़े सहमे से बैठे रहते हैं, उनको दाना पानी फराहम कर देना। हम देखते हैं अल्लाह ताला के बहुत सारे नेक बंदे ऐसे हैं जो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो किसी के काम आ जाना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना, दर हकीकत अपने लिए आसानियाँ पैदा करना है। वो बंदा अल्लाह के नज़दीक भी महबूब है। और जैसे भी हकीम साहब ने फरमाया कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। ये नेकियां, जो छोटी छोटी नेकियां हम कर लेते हैं ज़िंदगी में, यही हमारे उस दिन का हासिल है। क्योंकि आने वाला दिन किसने देखा है, न जाने कल हो या ना हो। तो बेहतर यह है कि लम्हे मौजूद में जो नेकी आप कर लेते हैं वही आपका असासा है, वही आपका सरमाया है। हकीम साहब राब्ते में आ चुके हैं। एक बार फिर आपका पुरतपाक खैर मक़दम है हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से। और लीजिए, उज़्मा साहिबा का सवाल है, वज़न बढ़ा हुआ है और ख़ज़ीरा के लिए आपने कहा था,
चलते हुए उनको, जैसे उन्होंने कहा कि सांस भी फूलता है, तो उनके लिए आपकी क्या रहनुमाई है? हाँ देखिए उल्मा, आप को मैंने अर्क जीरा नहीं बताया होगा, मैंने जीरे का सिरका बताया होगा। अर्क जीरा और जीरे का सिरका दो अलग अलग चीजें हैं। तो जीरे का सिरका आप लें और वो इस्तेमाल करें 2-3 चम्मच 2-3 बार। ये आपके चर्बी का दुश्मन है और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और बढ़े हुए वजन को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। तो अर्क जीरा नहीं, जीरे का सिरका आप इस्तेमाल करें। आपको कुछ मुगालता हो गया, कहने सुनने में फर्क हो गया है, तो जीरे का सिरका आता है, वो आप इस्तेमाल करें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, नसरीन साहबा, क्या सवाल है आपका? जी, हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा 4-5 सवाल है बाजी। जी, पहला सवाल मैं हकीम साहब का बहुत तारीफ करना चाहूंगी, शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी। मेरे शौहर को जो कमर दुखता था ना, तो गोंद सिया दिए थे तो उससे अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 3 महीना खाए और अभी थोड़ा और बाकी, तो मेरे शौहर बोलते कि 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, फिर तू मेरे को थोड़ा थोड़ा देसी बोलते, तो जैसे ज्यादा दे सकते क्या? एक ही टाइम देती हूँ शाम में, पर मैं बहुत ज्यादा सच्ची में बोलती हूँ कि इतना मैं खुश हुई। मेरे शौहर इतने परेशान थे, हकीम साहब दुआ भी किए और मेरे शौहर अच्छे हो गए, कमर बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा सवाल ये है कि मैं नमक जैतून खाती हूँ शाम में, तो एलोवेरा का जूस मंगाई थी और जैतून का जूस सर बोले थे, तो उससे मेरे को सर्दी बहुत होती जैतून के जूस से। और ये एलोवेरा का जूस क्या मैं सुबह में ले सकती हूँ उसको रोक के? बेहतर। और तीसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी का जो बाल के लिए गोंद मोरिंगा दिए थे, तो बाल तो अच्छा है मगर उसका जो पिंपल्स है वो नहीं जा रही। ठीक है, चौथा सवाल ये बाजी, शौहर मेरे सुबह नहाते हैं ना, जाते हैं काम पे, तो उनको सर्दी हो जाती है, गर्म पानी से नहाते हैं तो भी बहुत सर्दी होती है। ठीक है, और कोई सवाल ये है कि मेरे जेठ सऊदी से आए, तो उनके घुटने में और खांसी और ये गैस बहुत बनाता, बहुत ज्यादा परेशान है बाजी। और हकीम साहब से मैं सच में जितना बोलूं उतना कम है कि मेरे शौहर में इतनी खुश हूँ कि मैं सैर नहीं कर सकती, मेरे शौहर का कमर अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम साहब, मैं भी बहुत खुश हो गया कि इस बात से कि जो वाकई शौहर से मोहब्बत करती है उन्हें इस दर्जा ही खुशी होनी चाहिए। और अगर और भी थोड़ा सा दर्द रह गया हो तो उन्हें और भी दे सकते हैं। आधा ग्राम 2 बार दिया करें, आपने तो एक ही बार दिया और उनको फायदा हो गया, अल्लाह की मर्जी, लेकिन 2 बार देना चाहिए आधा ग्राम। और आपके जो अजीज लौटे हैं उनको दर्द है तो यही गोंद सिया उनको दीजिए 2 बार आधा ग्राम, तो इंशाल्लाह उनका भी ठीक होना मुमकिन है। और खांसी है तो माजून आर केयर लगातार 4-5 महीने खिलाएं और अपने शौहर को भी माजून आर केयर सुबह निहार मुंह गर्म पानी के साथ दिया करें, दूध उनका बंद कर दें और फिर लगातार 2-3 महीने देने से इनकी गुस्ल के बाद की सर्दी और ख़त्म हो सकती है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत, एक हमारे अंदर ताकत होती है जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक जब हो जाती है तो हमें ये सर्द मौसम या सर्दी के होने वाले अमराज से फ़ायदा मुमकिन होता है। और क्या सवाल था इनके जेठ का एक मसला और है, उन्होंने कहा उनको एसिडिटी है, गैस बहुत बनती है, तो उसके लिए क्या करें? सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना पाउडर बना के उनको दें और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर और ये नुस्खा 2 बार खाने के बाद उन्हें दिया करें। इंशाल्लाह ये परेशानी भी
अच्छी होना मुमकिन है। जी, इनका मसला ये है, नमक जैतून तो इस्तेमाल कर रही हैं, ये जानना चाहती हैं एलोवेरा का जो जूस है, ये एलोवेरा है, ये किस तरह इस्तेमाल करना है। दूसरे, इन्हें ज़ुकाम हो जाता है, शायद जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रही हैं ये। ठीक है जी, ये सिरका है और जूस नहीं है, ये सिरके हैं। ये मिजाज में ठंडे होते हैं, तो इनको अगर मिजाज इनका बदलना हो तो इसमें अदरक का जूस मिला लेते हैं हम वज़न, और जब इस्तेमाल करें तो एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर इस्तेमाल किया करें, तो आपको सर्दी होना बंद हो सकती है। उसके बावजूद भी सर्दी हो तो फिर इसकी जगह आप नमक जैतून लें और खाने का सोडा एक एक चुटकी दोनों चीज़ें पानी में मिला कर लिया करें, तो ये वही काम करेगा जो ये सिरके करते हैं, और सर्दी आपको नहीं होगी। इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बच्ची का एक सवाल और था कि उसके बालों की ग्रोथ तो हो गई और उसके पिंपल्स नहीं जाते, तो नमक जैतून एक चुटकी रोजाना पानी मिलाकर एक बार या 2 बार दिया करें। बच्ची के मुहासे भी अच्छे हो सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ी रहें। आपको जो फायदा अल्लाह ने दिया उस फायदे को अपने तक न रोकें, और तमाम अपने अजीज व अकारीब तक ये नुस्खा पहुंचा दें, ताकि दूसरे लोग भी और दूसरे लोगों के शौहर और बीवी को भी फायदा हो सके। जी, मुमताज़ साहिबा को शामिल कर रहे हैं, लेकिन मौका मिला तो एलोवेरा का इस्तेमाल, एलोवेरा का जूस अगर है उसका इस्तेमाल ज़रूर जानेंगे। मुमताज़ साहिबा, मज़ीद इंतज़ार आपको नहीं कराएंगे, सवाल बताइए। फ़ोन लाइन पर मौजूद है मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। जी मुमताज़ साहब, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई। मैडम मेरी उम्र 65 साल है, मेरे प्रोस्टेट जो है खड़े हुए हैं, तो मैं पीकेर दवाई खा रहा हूँ, 7-8 महीने हो गए खाते हुए पीकेर ना। हाँ। तो बाथरूम में जो दिक्कत थी वो तो है नहीं अब, लेकिन वो जो बड़ा हुआ है ना गांठ सी एक साइड पे, तो वो कम नहीं हो रही है। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा, दूसरा सवाल मेरी वाइफ का है, इन्हें जो है वो किडनी में प्रॉब्लम है, दवाई इनकी चल रही है, लेकिन इनका जो बाथरूम है वो मतलब एकदम प्रेशर से आता है, मतलब पता नहीं चल पाता, एकदम से आता है। तो इसके लिए मुझे कुछ वो पता है उपाय। वो वैसे मैं आपसे जो है करीब 10 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, थोड़ा सा इंतजार। जी, आपके सवालात शामिल करें जी हकीम साहब। और देखिए, जिन लोगों को पेशाब प्रेशर से और कसरत से आता है, बार बार जाना पड़ता है, रात में कई बार उठना पड़ता है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप अगर लिख लें तो। देखिए, लाजवंती के बीज मिलते हैं, लाजवंती के बीज, और वैसे 100 ग्राम लेना लाजवंती के बीज, और 100 ग्राम अलसी को हल्का सा भूनकर लाजवंती के साथ पाउडर बना लें, और ये आपको पानी में या दूध में या शहद में मिलाकर खानी है, और 1 चम्मच रोजाना, और 2 बार भी खा सकते हैं इसे। और खाना कैसे है, एक आता है गोंद चिलगोजा। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जिसका गोंद असली लेना जरूरी है। इसको पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और जब भी ये लाजवंती और अलसी का पाउडर खाएं, उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोजा मिला कर खा लें। शहद में मिलाकर खा सकते हैं, बालाई में मिलाकर खा सकते हैं, दूध में मिलाकर खा सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार। तो कसरत पेशाब की कसरत को ये एतदाल पर लाता है, और बहुत फायदेमंद नुस्खा है। इसे आप अपनी जोजा के लिए इस्तेमाल करें। और क्या सवाल था इनका? दूसरा इनका प्रोस्टेट का मसला है हकीम साहब। हाँ, तो वो तो काफी,
हाँ काफी अच्छा हो गया। पी केयर आप खाते रहें और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पी केयर इस पानी के साथ, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी के साथ खाया करें तो आपकी दूसरी परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। तनवीर भाई क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तनवीर अहमद बोल रहा हूँ, उजारी अमरोहा यानी बुगराची के पास। जी इस्तक़बाल। जी जी हकीम साहब से ही सवाल है कि अभी पिछले साल मेरे पेशाब में ब्लड आना शुरू हो गया था। जी खैर वो कोई बात नहीं, मैं दवाई खाता रहा, देसी होम्योपैथिक ये वो दुनिया भर की। 12 में मेरा मेरठ में ऑपरेशन हुआ और मैं अब ठीक हूँ। अब मुझे सर्दी बहुत लगती है, कमजोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, 2-2 दिन तक लिहाज में रह रहा हूँ अभी। तो बस हकीम साहब से यही दरख्वास्त है। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम ऑपरेट कराते हैं कुछ अपने जिस्म के आज़ा को, तो हमें ऑपरेशन के बाद जो अद्वियात दी जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। तो फिर आदमी को कमज़ोरी महसूस होती है, सर्दी ज़्यादा लगती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रूरत से कम हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का नुस्खा आप लिख लें और वो 5-6 महीने लगातार खाएं। और वो नुस्खा ये है कि सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और 100-100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेनी है। और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, शहतूत नुमा होती हैं, तो इन्हें आप पीसकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के हमरा लिया करें। ज़रूरत हो तो रात को सोते वक्त भी गर्म पानी के साथ लिया करें और गर्म पानी कसरत से इस्तेमाल करें। ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें आप छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नूरैन बताएं क्या सवाल है आपका? जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है 14 साल का, दुबला पतला है और उसका वेट 43 kg है। तो उसको क्या मैं गोंद चिलगोजा दे सकती हूँ क्या? और दूसरा सवाल ये है कि उसके सेहत के लिए कि वो उसका वजन बढ़े, हेल्थ आए, उसके लिए कुछ रहनुमाई फरमा दे हकीम साहब। और एक परेशानी और है कि उसको ना थोड़ी सर्दी हो जाती, थोड़े से में थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ या सुबह उठता है तो छींकना और नाक बहना ऐसा उसको हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी हड्डियों की मजबूती के लिए कि दर्द रहता है, बताता है कि शरीर में कहीं जॉइंट में, कभी घुटने में तो कभी पंजे में, ऐसा। तो थोड़ा सा प्लीज बताएंगे कि क्या करूं मैं? बेहतर सुनिए जी हकीम साहब। तो देखिए बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है और वो जब ज़रूरत के मुताबिक होगी तो बच्चा सेहत भी हासिल करेगा और ये नज़ला, खांसी, दर्द और दूसरी बीमारियां भी इस पर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगी और जल्दी हावी नहीं हो पाएंगी। तो या तो इस सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले, रात को खाने के बाद गर्म पानी से दें और ठंडी और खट्टी चीज़ें वो छोड़ दें। या फिर एक आती माजून आर केयर, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहतरीन है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से, 1 चम्मच रात को सोते वक्त, और दूध भी छुड़ा दें बच्चे का और कुछ दिन तक, और 4-5 महीने लगातार इनका इलाज करें तो इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी शाहीना साहब फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। मैं कल फोन की थी, मुझे डायबिटीज तो है, 60 साल है मेरी एज,
फलों से मुझे सर्दी है, मैं कोई फल नहीं खा सकती हकीम साहब। खून की कमी भी बनी रहती है मुझे और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, तो सिरका वगैरह भी नहीं सूट करता है, सर्दी हो जाती है मुझे भी। ठीक है ठीक जी हकीम साहब। यही परेशानी, बीपी बीच बीच में कभी कभी लो हो जाता है, डॉक्टर को दिखाई हूँ तो। ठीक है। अच्छा देखिए, सिरके जिन लोगों को सर्द पड़ते हैं या माफिक नहीं आते, उनको डायबिटीज के लिए एक गोंद आता है जो जिसे गोंद जामुन कहते हैं। ये एक एक चुटकी, ये रॉ मटेरियल है, एक एक चुटकी 2 बार, और खाने से पहले, खाने के बाद, खाने से आधा घंटा पहले खाना बेहतर है, लिया कर। और दूसरी परेशानियों के लिए आप डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है ये दूसरी परेशानियां भी आपकी अच्छी हो जाए। डायबिटीज हमारे जिस्म का पूरा निजाम बिगाड़ देती है। अपनी दवाएं भी लेते रहें और गोंद जामुन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन है। जी शरीफ खान साहब, क्या सवाल है? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो जामुन गोंद ले रहा हूँ शुगर के लिए, आप अल्लाह पाक का करम है, कंट्रोल है। पूछना ये था कि गोंसिया को दोनों टाइम लेना है? गोंसिया भी ले रहा हूँ, लेकिन पैर में दर्द है, मेरा पैर टूटा हुआ था, उसमें उतना असर नहीं आ रहा है, तो दोनों टाइम लेना है या एक टाइम लेना है? मैं एक टाइम ले रहा हूँ। और 14 साल का बच्चा है, उसको चिलगोजा दे सकते हैं क्या? ये 2 सवाल थे मेरे। जी बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ, 14 साल के बच्चे को एक चुटकी दे सकते हैं पूरे 24 घंटे। एक टाइम दे सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा फायदा इसीलिए नहीं हो रहा कि आप कौन सा एक वक्त ले रहे हैं, 2 वक्त लीजिए तो अच्छा। मुकम्मल आपको जब पोटेंसी पहुंचेगी तो डायबिटीज की तरह उसमें भी आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, और गोंद जामुन ये इस्तेमाल करते रहे हकीम साहब? शुगर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है इनकी। हाँ, गोंद जामुन देखिए दुनिया का एक ऐसा गोंद है जो मिलता तो मुश्किल से है, या नकली भी मिल जाता है, लेकिन मैंने दुनिया के नुस्खे जात मुझे मालूम है, कई हजार नुस्खे मुझे मालूम है डायबिटीज के, लेकिन इससे तेज असर अपनी जिंदगी और तजर्बे में मैंने कोई दवा नहीं देखी जो इतनी तेजी से डायबिटीज को कंट्रोल करे। अपनी अद्वियात के साथ भी इसे ले सकते हैं, और 2 बार या 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक चुटकी खुराक है इसकी, उससे ज्यादा न लें। दुनिया की तेज तरीन रॉ मटेरियल में से है, जिन लोगों तक ये पहुंचे उनको फायदा मुमकिन है। जी मोहम्मद भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए मोहम्मद भाई, सवाल बताइए। हेलो जी भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? मोहम्मद इलियास शाहजहानपुर। जी मोहम्मद इलियास साहब, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? हम आपको दूसरे चैनल पर ढूंढ रहे थे, आप आज से मेरी बहुत खुशी की बात है, आज मेरी कार लग गई, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। जी सलामत रहिए, फरमाइए क्या सवाल है? हम ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने वो बताया था नींबू अदरक का, जो वो बताया था, वो किस वक्त पी सकते हैं? जी हकीम साहब। हेलो जी 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 इलियास भाई, अगर टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर देते तो और बेहतर होता। हेलो जी हेलो, मैं समझ नहीं सकता हूँ इनका सवाल। इनका सवाल ये है, इलियास भाई फोन लाइन पे रहिएगा, जो आप महलूल बताते हैं हकीम साहब, अदरक का जूस, लहसुन का, नींबू का, एक महलूल तैयार करते हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं उसे कितनी बार इस्तेमाल करना है? हाँ, अपनी तबीयत के मुताबिक, अगर ज्यादा परेशानी है, हार्ट ब्लॉकेज है, दिल की रगों कई शरियान में ब्लॉकेज ज्यादा है, तो 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-3 चम्मच। और ये 3-4 इमराज में काम करता है। एक तो डायबिटीज नहीं होने देता,
एक कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। जमी हुई चर्बी और हार्ट ब्लॉकेज के लिए मुफीद है और ब्लड प्रेशर को ये कुदरती तौर पर कंट्रोल करता है, फालिज होने से रोकता है। मफलूज लोग भी इसे 2 या 3 बार ले सकते हैं। जो फालिज ज़दा लोग हैं, ये आपको 3-4 अमराज जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पेट के लिए बहुत मुफीद है और हार्ट ब्लॉक में इसको लेना बेहतर है। जी मधुलिका, क्या सवाल है आपका? मधुलिका में सुन पा रही हैं? जी इस्तकबाल है आपका, खैर मकदम, फरमाइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी आप सुन रही हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, फरमाइए। जी मेरा 2 सवाल है बाजी। जी पहला सवाल हकीम साहब से। पहला सवाल है जी, मेरे सर्वाइकल का मुझे प्रॉब्लम है और डॉक्टर बताते हैं माइग्रेन का है शिकायत। तो मेरा 1 साल से दवा चल रहा है, लेकिन दवा खाते हैं फायदा रहता है, लेकिन रात को मैं सोती हूँ तो मुझे पूरे गर्दन जो है दर्द होता है। मतलब 1 साल परमानेंट दवा हो गया, लेकिन खास फायदा नहीं है दवा से, बस फायदा। दवा अगर मैं 1-2 दिन के लिए नाका कर देती हूँ तो मेरे सर पूरा चक्कर करने लगता, घूमने लगता। तो हकीम साहब से गुजारिश है कि कुछ दवा ऐसी बताएं ताकि ये मर्ज हमारा खत्म हो। बेहतर। दूसरा सवाल ये है कि मेरी लड़की 23 साल की है, उसको बहुत सर्दी जुकाम नजला का शिकायत है। हमेशा जो मतलब सर्दी हल्का हल्का रहेगा, गले में खराश रहेगा, सो के उठेगी तो उसको जो सर्दी छींक आता है, 2-3 बार छींक जरूर आएगा। और नाक का भी कुछ प्रॉब्लम है, नाक का इलाज हमने कुछ किया कुछ दिन, तो नाक में थोड़ी सी राहत हो गई, लेकिन जैसे सर्दी उर्दी होती है तो उसके नाक में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। जी बिल्कुल। और बलगम नहीं निकलेगा, सूखा सूखा रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत महसूस करती है। बेहतर। अब आप सुनिए अपनी दोनों परेशानियों का हल। जी हकीम साहब। तो देखिए, बच्ची को में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है और जब तक हम उसे जरूरत के बराबर न ले आए वो बच्ची बीमार रहेगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए हम 2 नुस्खे अक्सर पेश करते हैं। एक तो बनी बनाई दवा है, एक दवा आप बना लें, जो भी आपको आसानी हो। अगर बनी बनाई दवा लें तो माजून आर केयर एक पेस्ट है, एक च्यवनप्राश है समझ लीजिए। माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से खिला दें, 1 चम्मच रात को, और ये 5-6 महीने लगातार खिलाना होता है। और शर्त यह है कि खट्टी चीजें जो बच्चियों को बहुत पसंद है, इलाज के दौरान उसको छोड़ना होगा। ऐसे बच्चियों को या मरीजों को दूध भी देना बंद कर दें, क्योंकि दूध से भी ये कफ और खांसी और बलगम और छींकें आती हैं। तो 5-6 महीने के लिए ये सब रोक दें और घरेलू नुस्खा आप बना लें तो बेहतर है। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाप 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। उन्नाप की गुठली निकाल के फेंक दें और ये सब तीनों चीजें 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपलें, जिसे हम हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रात को खिलाएं और बेशतर गर्म पानी पिए, खट्टी चीजें और दूध छोड़ दे तो बच्ची अच्छी हो सकती है। आपकी तकलीफ इस बच्ची से भी ज्यादा है। हाँ, आप हमारे पास वक्त बहुत कम है, शायद कुछ सेकंड रह गए हकीम साहब। ठीक है, इसमें सर्वाइकल में ये एक्सरसाइज करें जी, ऐसे, और ये वाली ऐसे। दवा की जरूरत भी नहीं है, 3-3 मिनट करें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे और इसी तरह इंशाअल्लाह आप रोज़ अपना फैज़ लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह तमाम नाज़रीन के शुक्रिया के साथ इजाज़त देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।